اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماذا یقول حاصل بعیر، یہ اونٹ آیا ہے آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھا ہے، آپ کی بارگاہ میں جھکا ہے، آپ نے فرمایا ہے ما ان اللہ قد امن آئزنا، پریشان نہ ہو تیری جان کی امان ہمارے ذمہ ہے، پریشان نہ ہو کوئی تجھے نقصان نہیں دے گا، ولیسا بخائب لائزنا، ہمارا جو لائز بن جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یا رسول اللہ ماذا یقول حاصل بعیر، اس اونٹ نے آپ کی بارگاہ میں کیا کہا ہے جس کی وجہ سے آپ اسے جان کی امان بھی دے رہے ہیں اور اسے محفوظ بھی مقام عطا فرما رہے ہیں، اسے تسلی بھی دے رہے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ھذا بعیر ہم اہلہ بنہرہ واکل لحمہ فہرب منہ، فرمایا یہ اونٹ ہے، اس کے مالکوں نے کھانے کا پکانے کا جب ارادہ کیا، مالک کہہ رہے تھے یہ اونٹ بوڑھا ہو چکا ہے اب کسی کام کا نہیں رہا، لہذا ہم اس طرح کرتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں اسے پکا لیتے ہیں۔ فرمایا جب یہ بات اس اونٹ کے کانوں تک پہنچی نا تو اونٹ کو پتا چل گیا کہ میری جان خطرے میں ہے، اب جان بچے گی تو پیارے نبی کے در پہ بچے گی۔ فرمایا فہرب منہ، اونٹ وہاں سے بھاگا، فرمایا آیا ہے ہمارے در پہ آیا ہے، اور میرے نبی نے جو جملے بولے الفاظ بولے، میرے نبی فرماتی ہیں وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، فرمایا اونٹ آیا ہے آتے ہی اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے، اونٹ آیا ہے آتے ہی اس نے تمہارے نبی سے، لگتا ہے اونٹ بھی پکا سنی تھا۔ کیا میرے نبی فرما رہے ہیں؟ فرمایا آیا ہے، آج کہتے ہیں تمہیں خطیبوں نے یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ بڑی مشکل کشا ہے، بڑی مددگار ہے، غوث اعظم مشکل کشا ہے، غوث اعظم مددگار ہے، اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے پیارے بھی مشکل کشا ہے، ان میں فرق ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں تو وہ اللہ کی شانیں مانتے ہیں، تو اللہ کو جو شانیں، اللہ کی جو شانیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہے، اللہ کے ولیوں کی جو شانیں ہیں وہ رب ذوالجلال کی عطا سے ہیں۔ اور شرک کی تعریف پڑھے تو اس میں بھی یہ ہے الاشراک هو اثبات الشریک بالالوہیت بمعنى وجوب الوجود او بمعنى استحقاق العبادت كمال عبادت الاصنام۔ شرک یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا، شرک یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ ہم اللہ کے پیاروں کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا کے برابر کہتے ہیں، ہم اللہ کے پیاروں کی نہ مدد کرتے ہیں، ہم نہ انہیں مستحق عبادت جانتے ہیں، لہذا نتیجہ یہ نکلا اللہ کے پیارے مشکل کشا ہے تو یہ رب ذوالجلال کی عطا سے مشکل کشا ہے۔ اب یہ انداز ہے، اب اونٹ جب نبی کی بارگاہ میں آیا، صحابہ نے جب نبی کی بارگاہ میں عرض کی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اونٹ آیا ہے وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، فرمایا آتے ہی اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے۔ اب اونٹ کو کس نے سکھایا تھا کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے نبی بھی مشکل کشا ہے۔ تو آج جانور بھی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مشکل کشا ہیں، در پہ آنے کی دیر ہوتی ہے تو کام بن جاتا ہے۔ چار ٹانگوں والا نبی کے در کا خیال رکھے، چار ٹانگوں والا اونٹ نبی کے در پہ آ کر یہ عقیدہ واضح کرے اور صحابہ بھی نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو۔ میرے نبی فرمایا وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ، فرمایا آتے ہی تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اونٹ جب نبی کی بارگاہ میں عرضی پیش کر چکا نا، صحابہ کہتے ہیں اونٹ بڑا ڈرا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ جو نبی کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میری جان کی امان آپ کے ذمہ ہے۔ اتنی ہی بات ہو رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں اونٹ کے پیچھے مالک بھی آ گئے، جن کا اونٹ بھاگا ہوا تھا نا وہ مالک بھی نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کا انداز دیکھا تو بڑا کمال کا تھا۔ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْبَعِيرُ عَادَ إِلَى حَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ، اونٹ کی نظر جب مالکوں پہ پڑی نا تو اس نے اپنے جسم کو آگے گھسیٹنا شروع کر دیا، آگے گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سر جو ہے نبی کی گود میں آ پڑتا
है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, वो दुश्मन सर पे आ गए हैं, बचाना आपके जिम्मा में है। मेरे नबी सर पे हाथ भी फरमा रहे हैं, तो मैं परेशान न हो, मैं अल्लाह कल अमना आइज़गा बनीसा बिखाई लाइज़गा, फरमान आया है तो हम तुझे परेशान नहीं होने देंगे, तेरी जान को अब कोई खतरा नहीं है। सहाबा कहते हैं जब इतनी बात हुई, मालिक कहते हैं या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं, हम ऊंट को तलाश कर रहे हैं, 3 दिनों से ये भागा है, हमें कहीं और नजर नहीं आया, 3 दिन हो गए हैं, ये भागता भागता आ रहा है और इसकी ब्रेक लगी है तो आपके दर पे आके लगी है। आज कहते हैं तुमने नियत करनी है, उम्रा पे जाते हो तो बैतुल्ला की करके जाओ, तवाफ की करके जाओ, हजर अस्वद की करके जाओ। हम कहते हैं जो 3 दिनों का ऊंट भागा हुआ था, इससे तो पूछो नियत किधर की है। इसे भी पता है बैतुल्ला है, इसे भी पता है हजर अस्वद है, लेकिन इसने नबी के दर पे जो हाजिरी दी, ये अकीदा दिया। ऐ ईमान वालों, अगर कमाल चाहते हो, अगर चाहते हो तुम्हें रब का भी कुर्ब मिले, रब के हबीब का भी कुर्ब मिले, तो फिर महबूब के दर पे आ जाओ। जहां आने की देर होती है तो फिर तुम्हारी बिगड़ी बन जाती है। सहाबा कहते हैं अब जब ऊंट ने नबी की बारगाह में देखा, वो माल आए, वो माल वाले आए, वो मालिक आए, नबी की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह 3 दिनों से हम इस ऊंट को तलाश कर रहे हैं, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये ऊंट हमें नजर नहीं आ रहा, हमें मिल नहीं रहा। या रसूल अल्लाह आज आपकी बारगाह में आए हैं तो आपकी बारगाह में ये बैठा हुआ है, हमारा ऊंट है, 3 दिनों से हम तलाश कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसे तुम तलाश कर रहे हो, अमा इन्नहु यशकू, वो तो आकर तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है, वो आकर तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया इतना तो देखो, जिसने इतनी तुम्हारी खिदमत की हो, क्या अब उसका हक यही बनता है कि उसको नर करके गोश्त बना के खाया जाए। वो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अब हमारी आंखें खुल गई हैं, अब हम बड़े प्यार से पालेंगे, बड़े नाज से पालेंगे, घर में लेके जाएंगे। और मेरे नबी की शान है, मेरे नबी अंदर के हाल को भी जान लेते हैं, बाहर के हाल को भी जान लेते हैं। ऊपर से कौन बोल रहा है, अंदर से कौन बोल रहा है, मेरे नबी सीने का हाल भी जानते हैं, जुबान का हाल भी जानते हैं। अब जब उन लोगों ने ये कलाम किया या रसूल अल्लाह लेके जाएंगे, बड़े नाज से पालेंगे, बड़े अदब से पालेंगे, बड़े प्यार से पालेंगे, मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर से मुनाफिकत नजर आ रही है। तुम कह रहे हो ऊपर से तो ये कह रहे हो, अंदर तुम्हारा ये ख्याल है बस जाने की देर है, फौरन नहर करेंगे, गोश्त बनाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया क्यों, मैं अब देख रहा हूं तुम्हारे अंदर से मुझे मुनाफिकत नजर आती है, पर मैं इस ऊंट को अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं भेजूंगा। अब ये है मेरे नबी की शान। अब मेरे नबी आगे ऐलान कर रहे हैं, फरमाया इन्नल्लाह नज़र रहमता फी कुलूबिल मुमिनीन, फरमाया अल्लाह ने रहमत को छीन लिया है। अल्लाह ने इन्नल्लाह नज़र रहमता फी कुलूबिल मुनाफिकीन, फरमाया अल्लाह ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत को छीन लिया है, रहमत दिली को छीन लिया है। वसक्कनहा फी कुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने ये रहमत दिली रखी है, अल्लाह ने ये रखी है तो सिर्फ मोमिन के सीने में रखी है, ये रहमत रखी है तो मोमिन के सीने में है, नरम दिली है तो मोमिन के सीने में है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, अब इस ऊंट को जाने नहीं देना, ये इस ऊंट को हमने खरीद के आजाद कर देना है। सहाबा कहते हम देख रहे थे, मेरे नबी ने ऊंट खरीदा, मेरे नबी ने ऊंट लिया, अपने पैसों से आधा पैसे खुद अदा किए। अब ऊंट जब नबी की बारगाह में बैठा है, मेरे नबी ने फरमाया या भाई ऐ ऊंट अब सर को उठा ले, फरमाया ऊंट अब सर उठा, अब कोई खतरा नहीं है। फरमाया या भाई इन तलिक फ़अंता हुर्रुन लिवजहिल्लाह, फरमाया ऊंट मौजा मार, अब हमने तुझे आजाद कर दिया है। सहाबा कहते हैं जब मेरे नबी ने फरमाया ना फंतलिक चल फ़अंता हुर्रुन लिवजहिल्लाह, फरमाया तू अब आजाद है, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई तेरी जान का दुश्मन नहीं है, कोई तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। सहाबा कहते हैं ऊंट आजादी भी हासिल कर रहा था, दुआएं भी कर रहा था। मेरे नबी आमीन कह रहे थे, कह लगे सुम्मा रहा, ऊंट ने कुछ बोला, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। ऊंट ने दूसरी मर्तबा भी कुछ बोला, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। ऊंट ने तीसरी मर्तबा भी कुछ बोला, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। ऊंट ने चौथी मर्तबा सुम्मा राबिअता फबकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट ने चौथी मर्तबा भी कोई दुआ की तो मेरे नबी की आंखों से आंसू निकल आए और मेरे नबी ने आमीन भी फरमाया। सहाबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, अभी मुस्कुरा रहे थे, अभी ऊंट को तसल्ली दे रहे थे, अभी आमीन कह रहे थे, फिर चौथी मर्तबा आमीन भी कहा है और रो भी पड़े हैं, या रसूल अल्लाह क्या वजह है। मेरे नबी
फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने ऊंट को आजाद किया ना, ऊंट ने मेरी उम्मत के लिए दुआएं करना शुरू कर दिया। और मैं ऊंट पहली दुआ कर रहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मत को बेहतरीन जज़ा दे। आपने कुरान भी दिया, आपने दीन भी दिया, आपने इस्लाम भी दिया। मैंने कहा आमीन। या रसूल अल्लाह, दूसरी दुआ क्या की उसने, जो दूसरी मरतबा आपने आमीन फरमाया? तो मैं ऊंट कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, हर एक को जब अपनी पड़ी होगी, आपकी उम्मत पे मुश्किल आएगी, आपकी उम्मत पे उस वक्त मुश्किल घड़ी आएगी। फरमाया, अल्लाह आपकी उम्मत की मुश्किलों को ऐसे दूर करे जिस तरह आज आपने मेरी मुश्किल को दूर फरमाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। या रसूल अल्लाह, आपने तीसरी मरतबा भी आमीन फरमाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये ऊंट कह रहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मत के खून को दुश्मन से बचाए, दुश्मन से महफूज रखे, दुश्मन कभी आपकी उम्मत के खून से फायदा ना उठाए। मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। या रसूल अल्लाह, चौथी मरतबा भी आपने आमीन भी कहा है, आप रो भी पड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये ऊंट कह रहा था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कभी आपस में न लड़े। मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने आमीन भी कहा, मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए। या रसूल अल्लाह, रोने में क्या हिम्मत है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, यही चार दुआएं तो मैंने भी अपने रब से अपनी उम्मत के लिए मांगी थी जो ऊंट मांग रहा था। फरमाया, मैंने पहली भी की, दूसरी भी की, तीसरी भी की। जब मैंने चौथी दुआ की ना, फरमाया मेरे पास जिब्रील आ गए और मुझे पैगाम दिया कि आपकी उम्मत फना नहीं होगी मगर तलवार के जोर पे। और मुहद्दिसीन ने लिखा, सैयदना उस्मान गनी की शहादत के वक्त जब तलवार नियाम से बाहर निकलती है, फिर क़यामत तक तलवार जो है वो नियाम के अंदर नहीं जाएगी। आपस के इख्तिलाफ हमेशा ये चलते रहेंगे। फरमाया, ये वो दुआ थी जो ऊंट कर रहा था। मेरे नबी आमीन भी फरमा रहे थे, मेरे नबी आंखों से आंसू भी बहा रहे थे। आज इस सूरत हाल को देखें तो ये देख ले कि जानवर जब नबी की उम्मत के लिए दुआ करता है, जानवर जब नबी की उम्मत की खैर खाही की दुआ करता है, तो हमारा भी हक बनता है, हमारा मोमिन भाई जब किसी जुल्म का शिकार हो, जब किसी मुसीबत का शिकार हो, जब किसी मुश्किल में फंस जाए, हमारा हक बनता है हम हर लम्हा उनको अपनी दुआओं में याद रखते नजर आए। इस इज्तिमा की बरकत से अल्लाह फलस्तीनियों की भी मदद फरमाए, जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो जिहाद कर रहे हैं अल्लाह उनकी ये भी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी बेहिसाब मदद फरमाए। रब्बे जुल जलाल इन घड़ियों का सदका हम सबको ऐसा जज्बा अता फरमाए जिस जज्बे के अंदर नबी की मोहब्बत, नबी की नामूस की चौकीदारी, जिसमें नबी के असहाब की नामूस की चौकीदारी, जिसमें नबी की आल की नामूस की चौकीदारी हो, और इसी के अंदर ही जिंदगी बसर हो और इसी के मुताबिक दुनिया से जाए। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल हमारी मुख्तसर शिहाजी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।